बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the article of centripetal force. We have discussed thoroughly about centripetal force, some examples of centripetal force, and in the end, we have derived the formula of centripetal force. Today we are going to start the last topic of this chapter, which is centrifugal force and some applications of centripetal and centrifugal force. Now going towards the centrifugal force, before going towards the centrifugal force, we have discussed three laws of motion. Newton's three laws of motion. And in the third law of motion states that every action force has an equal and opposite reaction force. कि कोई भी एक्शन, अगर किसी बॉडी में कोई फोर्स प्रोड्यूस होती है तो वो कोई एक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन फोर्स देयर विल बी a reaction force of equal magnitude but of opposite direction. Same is the case with centripetal force. As you know that centripetal force is a type of force which keeps the body to move in a circle. So according to Newton's third law of motion, there will be some reaction force to this centripetal force. And the centripetal force, the reaction force of this centripetal force is basically called centrifugal force. So what is actually centrifugal force? Centripetal force क्या कर रही थी? Centripetal force बॉडी को इस बात पर मजबूर कर रही थी कि वो सर्कल के अंदर मूव करे. For example, we take an example just like the last time, in which a stone is tied to the end of a string. ठीक है, जैसे कि हमने last time, as we have discussed the example of a stone which is tied to a string. Now this necessary centripetal force is provided by the tension in the string, and centripetal force, as we have discussed, that centripetal force is always, what will be the direction of centripetal force? Centripetal force is always towards the center of the circle. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कल के इनवर्ड होगी. क्या होगी? सर्कल के इनवर्ड होगी या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी. ठीक है, सो अब इस स्टोन को टाई किया हुआ स्ट्रिंग के साथ, और इसको सर्कुलर पाथ में कौन मूव करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ द रिएक्शन फोर्स will be the centrifugal force. As a result of that centripetal force, there will be an equal but opposite force which is called the centrifugal force. Now what will be the direction of the centrifugal force? Centrifugal force की क्या डायरेक्शन होगी? Centrifugal force हमेशा बॉडी को सर्कल से बाहर की तरफ मूव करवाएगी. दोबारा कहता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो हमेशा बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवा रही थी इनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन उसके ऑपोजिट एक फोर्स उसी टाइम पर अप्लाई होगी बॉडी पर, जो कि बॉडी को ऑपोजिट मूव करवाएगी, और ऑपोजिट का मतलब ये है कि सर्कल से बाहर मूव करवाएगी. सो दैट फोर्स विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोनों की, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उसकी वजह से बॉडी उस फोर्स की वजह से मूव करेगी. अगर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fg इसको अगर हम कहते हैं, और ये Fc है, अगर तो Fc या सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती रहेगी. बट इफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हायर, then the body will not move in the circle but will move in the
outward direction, because according to Newton's third law of motion there will be an equal and opposite force. किस पर? सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट में एक और फोर्स एक्ट करेगी, एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको आप पढ़ लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कंसीडर अ स्टोन शोन इन फिगर 3.28 टाइड टू द स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कल, कि एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को हमने टाई किया हुआ और वो सर्कल के अंदर मूव कर। The necessary centripetal force acts on the stone through the string that keeps it to move in a circle, कि जो necessary centripetal force जो कि tension in the string है वो क्या करवा रही है? बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवा रही है। According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force, कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक और रिएक्शन फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मुकाबले में बॉडी पर लगेगी। सेंट्रीपिटल, यह डेफिनेशन आ गई। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, यही सेकंड लास्ट लाइन, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग की जगह आप काट के बॉडी कर लें, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग की जगह आप बॉडी कर लें। आउटवर्ड इज समटाइम्स को भी काट दें, इज समटाइम्स को काट दें, कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द बॉडी आउटवर्ड इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के अंदर मूव करवाती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को सर्कल से बाहर मूव करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, सिंपल सी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज हुआ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, Fc = mv²/r। सिंपल वो फॉर्मूला यूज हुआ है, या आप खुद कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने जो लास्ट एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, उस पर मूव करते हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है? देखिए, जब भी आप किसी ऐसी रोड पे मूव कर रहे हो, ठीक है, जो स्लिपरी हो, वेट हो, उस पर ये चीज़ हम पहले भी फ्रिक्शन में डिस्कस करके आ चुके हैं कि गाड़ी के या व्हीकल के स्किड होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज किसी वेट या स्लिपरी रोड पर जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है और स्लिपनेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी आपको, ये बात लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, कि जब कोई कार रोड पर मूव कर रही है या किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, किसी राउंड अबाउट के अराउंड मूव कर रही है, जैसे गोल चक्कर, यहाँ पर समनाबाद में गोल चक्कर है, अगर इसमें गाड़ी मूव कर रही है तो वो एक सर्कुलर पैटर्न है, गोल चक्कर एक सर्कुलर राउंड पैटर्न है ना, तो उसमें जब कार या व्हीकल कोई मूव करेगी तो उसको कौन सी फोर्स मूव करवाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, Fc = mv²/r। सो जब कोई कार राउंड अबाउट के अराउंड मूव करेगी या किसी सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव करेगी तो कौन सी फोर्स मूव करवाएगी? उसे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्ट इन द केस ऑफ अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स was provided by the tension in the string. Now in this case, where a car moves around a roundabout, what will be the necessary centripetal force? So the necessary centripetal force will be provided by the force of friction between the tires and the roads. कि कौन सी ऐसी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? वो प्रोवाइड कर रही है बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स। ठीक है, टायर्स और रोड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब होता क्या है, अगर तो जो रोड है वो स्लिपरी है, ठीक है, या अगर आप वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए, पहाड़ी इलाकों में गए हुए, हिली एरियाज में, वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी आपने देखा होगा कि रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होता है। बेसिकली होता क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम क्या करते हैं, जो रोड का, ठीक है, आउटर पार्ट होता है उसको रेज कर देते हैं, या जो उसका कर्व पाथ होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें काफ़ी कर्व सा रास्ते होते हैं,
बिल्कुल सीधा रास्ता प्लेन नहीं होता, कर्व से रास्ते होते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो आउटर या कर्व पार्ट जो रोड का होता है उसे रेज कर दिया जाता है। रेज का मतलब क्या है कि ऊपर कर दिया जाता है, उसको थोड़ी एलिवेशन दे दी जाती है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, जैसे हमने उधर पिट्स एंड बम्प्स में एलिवेशंस और डिप्रेशंस डिस्कस किए थे। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब है कि जो आउटर पार्ट ऑफ रोड है उसको हम रेस कर दें, ऊपर की तरफ उठा दें, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे ही शार्प टर्न लेगी गाड़ी, मतलब एकदम से टर्न आएगा, ठीक है, और हो सकता है उस पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए। सो वहां पर क्या होता है, जैसे ही हम उसको रेस कर देते हैं तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि प्रोवाइड करनी थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, किसने प्रोवाइड करनी थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। अब फ्रिक्शन जब कम हो जाएगी तो कार के स्किड होने के या उलटने के कार के चांस ज्यादा हो जाएंगे। सो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आउटर पार्ट है रोड का उसको कर्व जो पार्ट है उसको रेस कर दिया जाता है। रेस करने से क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है उस गाड़ी का वेट, ठीक है। उस गाड़ी का जो वेट होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कम हो जाती है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिलेगी उसको तो वो तो उलट जाएगी गाड़ी, सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकती। सो इसलिए उसको जो आपका कर्व पाथ रोड का है उसको थोड़ा सा रेस कर दिया जाता है। रेस करेंगे तो जो वो वेट है व्हीकल का वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो आप देखें तो आप उसको ऊपर कर रहे हैं तो जो वेट का कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं। सो जब हम आउटर पार्ट ऑफ द जो आपके पास रोड है उसको कर्व पार्ट जो है उसको रेस कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी उस कार का वेट, जो कि प्रोवाइड किसने करनी थी, फ्रिक्शन है। लेकिन अगर कार वेट है तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई है। सो उस सेंट्रीपिटल फोर्स को मतलब मेंटेन रखने के लिए हम वो उसको रेस कर देते हैं ताकि जो वेट है कार का वो प्रोवाइड करे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसको आप देख भी सकते हैं फिगर 3.29 में। आप अगर देखें तो कार जो है वो मूव कर रही है आपके पास सर्कुलर ट्रैक में। अब आप देख सकते हैं कि आउटर एज ऑफ द कर्व रोड, कि जो आउटर एज है कर्व रोड का उसको क्या कर दिया गया, पहले वो इस तरह था आपके पास, अब उसको रेस कर दिया गया है विद कुछ एंगल पे उसको ऊपर कर दिया गया। अब क्या होगा, गाड़ी जब इस तरफ उल्टेगी नहीं बल्कि वो जो रिएक्शन फोर्स, एक तो उसकी रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ होगी आर, और एक उसकी डाउनवर्ड फोर्स होगी जो कि उसका क्या होगा, वेट। यानी कि वो जब कर्व हो जाएगी तो उसको बैलेंस क्या चीज करेगी, क्योंकि असल चीज है गाड़ी को बैलेंस करना, कि वो जब वो कर्व पाथ में मूव करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे तो बैलेंस उसे उसका वेट करेगा, ठीक है। एक तो रिएक्शन फोर्स जो कि अपर डायरेक्शन में होगी और एक उस गाड़ी का वेट जो कि उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब हमने क्योंकि कर्व कर दिया है तो अब वो कर्व पाथ में उसको मूव करवाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर है, एक ऑपोजिट इससे फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स रिक्वायर है। तो वो क्या प्रोवाइड करती है, उस व्हीकल का वेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और देख सकते हैं आप, जैसे अगर वो आगे सर्कुलर ट्रैक की है पूरा, अगर आपके पास इस तरह से कर वो सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, ठीक है, तो ये उस सर्कुलर ट्रैक का आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जितनी उस कार की वेलोसिटी है, जितना उसका मैस है, और वो जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है उसका रेडियस क्या है, ठीक है। सो ये फायदा होता है आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड्स का। When a car takes a turn, centripetal force is needed to keep it in its curve track. कि जब कार कर्व ट्रैक पर टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है उसे कि वो कर्व ट्रैक पर अपने मोशन को कंटिन्यू रखे। अगर नहीं करेगी तो हो सकता है वो कर्व होने के बजाय सीधी चली जाए और उलट भी सकती है गाड़ी। अब वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स? द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। द कार वुड स्किड if the force of friction between the tires and the road is not sufficient enough, particularly when the roads are wet. कि जब रोड्स वेट होती हैं तो कार स्किड कर सकती है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कार को सर्कुलर
ट्रैक में मूव करवाने के लिए वो ऑलमोस्ट कम हो गई है, जिसकी वजह से कार के स्किड होने के चांस ज्यादा हो गए, स्पेशली इन केस ऑफ वेट रोड्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ अ रोड मींस दैट द आउटर एज, ठीक है, आउटर जो दूसरी तरफ का एज होता है, आउटर एज होता है ऑफ अ रोड इज रेज्ड, उसे ऊपर कर दिया जाता है कुछ एंगल पर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं फिगर में। इमेजिन अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड सच एज शोन इन फिगर 3.29। बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट, कि बैंकिंग से क्या होता है, एक पहले तो सिंपल एक वो प्लेन रोड पे मूव कर रही थी, लेकिन उससे वो वेट का एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स किस तरह ऐड होते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। एफ एक्स एफ वाई, एक एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होता है, एक वाई एक्सिस पर फोर्स का कंपोनेंट होता है। ठीक है, सो वो बैंकिंग ऑफ रोड से एक वेट का कंपोनेंट ऐड हो जाता है जो कि गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि गाड़ी का वेट भी एक फोर्स ही है। ठीक है, so banking causes a component of vehicle's weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. ठीक है, thus banking of roads prevents skidding of vehicle and thus making the driving safe, कि उससे ड्राइविंग भी आपकी क्या हो जाती है, सेफ, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वॉशिंग मशीन ड्रायर की। ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर बेस करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमने अभी पढ़ी है उसके कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, होता क्या है, आपने देखा हो अगर वॉशिंग मशीन ड्रायर को, तो उसका जो आपके पास अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है, वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें टाइनी होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वॉशिंग मशीन के स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, ड्रायर के स्विच को ऑन करते हैं, और उसमें वेट क्लोथ्स हमने डाले होते हैं, उनको हमने ड्राई करना होता है। वॉशिंग मशीन ड्रायर का काम बेसिकली यही होता है ना कि उसने ड्राई करना होता है, वाटर को रिमूव करवाना होता है क्लोथ्स में से। तो हम वेट क्लोथ्स क्या करते हैं, उस ड्रायर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, आपके पास जो स्पिनर होता है नीचे, क्या होता है, वो स्पिनर होता है जो घूमता है इस तरह, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, घूमता है इस तरह। उसके नीचे लगी होती है एक शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है, जैसे आपने टरबाइंस देखी होंगी, टरबाइंस को कौन मूव करवाता है, एक शाफ्ट मूव करवाती है। बेसिकली शाफ्ट एक मैकेनिकल सोर्स है जो कि रोटेट करवाती है किसी बॉडी को। तो वो जो स्पिनर होता है वॉशिंग मशीन ड्रायर का, वो एक शाफ्ट के साथ अटैच होता है जो उसके मूव करवाती है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो शाफ्ट भी मूव करना स्टार्ट होती है, और उसके साथ जो वो आपके पास स्पिनर लगा होता है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके ऊपर होते हैं वेट क्लोथ्स। ठीक है, अब जैसे ही वो मूव करता है तो पानी उन वेट क्लोथ्स में से ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ चला जाता है। कैसे, ये देखें, अगर तो आपके पास इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपके पास स्पिनर है, ठीक है, यहां पर आपके पास डिफरेंट क्लोथ्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर आपके पास इस तरह से वाटर, या पूरे यहां पर आपके पास इस तरह से वाटर है। अब जैसे ही वो मूव करते हैं, हम वो शाफ्ट की मदद से यहां पर अटैच होता है, जैसे ही वो मूव करती है शाफ्ट, तो वो जो आपके पास स्पिनर है वो भी साथ मूव करता है। जब ये मूव करता है तो अंदर जो वाटर है, ठीक है, क्योंकि वाटर आपको पता है वाटर का उतना मैस नहीं होगा जितना क्लोथ्स का मैस होगा, तो वाटर हाई स्पीड से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वाटर हाई स्पीड से बाहर की तरफ मूव करेगा। अब मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को सर्कल से बाहर की तरफ मूव करवाती है। अब क्योंकि हम वहां पर जो अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं, पीछे से जो आपके पास शाफ्ट या स्पिनर को जो अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उस फोर्स के जो कि उस वाटर को फोर्स करे कि वो उसी सर्कल के अंदर मूव करता रहे। दोबारा से मैं बताता हूं, हम जो अप्लाइड फोर्स शाफ्ट की मदद से अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो कि चाह रही है कि बॉडी या जो वाटर है वो उस क्लोथ्स के अंदर या उस सर्कल के अंदर ही मूव करे। बल्कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो बॉडी सर्कल से बाहर की तरफ मूव करेगी। सो यही होता है वाटर के केस में कि जैसे ही उसको हाई वेलोसिटी से वो घूमता है स्पिनर आपके पास, ठीक है,
उससे क्या होता है, वाटर उन क्लोथ्स में से ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज्यादा होने की वजह से कि एफ जी ज्यादा हो जाती है और एफ सी कम हो जाती है। सो एफ जी जब ज्यादा होगी तो बॉडी सर्कल से बाहर मूव करेगी। इसी तरह वाटर जो क्लोथ्स में होता है वो भी बड़ी तेजी से क्लोथ्स में से बाहर की तरफ मूव करता है और हमारे पास जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पिनर है, उसमें परफोरेटेड है, वो होल्स हैं उसमें। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंड्रिकल रोटर एज शोन इन फिगर 3.30। नीचे आप देख सकते हैं स्पिनर शाफ्ट है। ठीक है, ये स्पिनर है और उसके आसपास जो वॉल है, ये स्पिनर आपके पास लगा है और आसपास जो वॉल है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड या होल्स क्यों है उसमें? परफोरेटेड इसलिए है या होल्स उसमें इसलिए है ताकि वाटर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उन होल्स में से बाहर जाए तो क्लोथ्स में से उन होल्स की मदद से बाहर निकल जाए। यानी कि वाटर जब ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बाहर निकलेगा क्लोथ्स में से तो वो उन होल्स में से होता हुआ वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्लोथ्स अंदर रह जाएंगे। So they have a perforated wall having large number of fine holes in the cylindrical rotor as shown in figure. The lid of cylindrical container is closed after putting wet clothes in it. उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही wet clothes डाल देते हैं तो वो lid की मदद से उसको close कर देते हैं। When it spins at high speed, जब उसको high speed से move करवाते हैं, the water from wet clothes is forced out through these holes. कि वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत ज़्यादा हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर उन होल्स में से बाहर निकल जाता है। वेट क्लॉथ से निकलता है और होल्स में से बाहर निकल जाता है, जो कि परफोरेटेड आपको मैंने बताया वॉल या जिसमें होल्स होते हैं, उन होल्स में से वाटर क्लॉथ्स में से होता नहीं, क्लॉथ से बाहर निकलता है पहले आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और फिर होल्स में से होता हुआ बाहर निकल जाता है। So the water from wet clothes is forced out through these holes due to lack of centripetal force. अगर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होती फिर तो वाटर अंदर ही सर्कल के अंदर उस स्पिनर के अंदर ही मूव करता रहता, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कम थी उस वाटर पर तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा थी, उसकी वजह से वो बाहर निकल गया और होल्स में से होता हुआ पानी को हमने बाहर निकाल दिया और क्लोथ्स हमारे पास ड्राई हो। ठीक है, लास्ट हमारे पास आर्टिकल है क्रीम सेपरेटर। ठीक है, अब आपने ये क्रीम सेपरेटर का पहले भी शायद सुना हो नाम। इसमें क्या किया जाता है, अब जो हमारे पास हम मिल्क लेते हैं, ठीक है, या जो भैंस का दूध होता है उसमें आपके पास फैट कंटेंट या ये जो क्रीम होती हैं और ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिल्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए तो अगर आप मिल्क में फ़ैट ज़्यादा हो तो उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन जो काफ़ी ओल्ड एज के पीपल होते हैं या ब्लड प्रेशर के, हार्ट पेशेंट या जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा फैट सूटेबल नहीं होता, तो उसके लिए या क्रीम भी अगर हो तो वो भी सूटेबल नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क में से जो क्रीम या फैट होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं हम, ये जो क्रीम सेपरेटर होता है ये भी बेस करता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स के प्रिंसिपल पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि हमने यहाँ देखी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट लगती है, जो कि आपकी बॉडी को सर्कल से बाहर की तरफ मूव करवाती है। अब जो फैट कंटेंट होता है मिल्क में वो हैवी होता है। फैट कंटेंट क्या होता है, हैवी होता है या उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी आपने जाकर पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में। डेंसिटी मैं बता देता हूँ, डेंसिटी होती है मैस, डेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ उससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। मैस ओवर वॉल्यूम या मैस पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। जिस चीज का मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का मैस ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा डेंस होते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं। लिक्विड कम डेंसर होते हैं सॉलिड से, गैसेस सॉलिड्स और लिक्विड से भी कम डेंसर होते हैं क्योंकि उनका वो तो गैसेस तो बहुत लाइट होती हैं आपके पास। ठीक है, अब होता क्या है, मिल्क में जो आपके पास फैट कंटेंट होता है वो हैवी होता है या उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जैसे ही हम वो जो क्रीम सेपरेटर होता है उस वो भी बिल्कुल एक जैसे स्पिनर हमने लास्ट केस में पढ़ा वो भी इसी तरह का बाउल होता है,
उसको जब हम ऑन करते हैं और जब वो घूमता है तो जो फैट कंटेंट होता है वो हैवी होता है, वो आसपास की वॉल्स के गिर्द क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। किस तरह, जैसा कि मैंने यहां बताया, आपके पास क्या होता है, आपके पास आप समझें कि इस तरह से आपके पास बाउल है, ठीक है, इस तरह से। अब अंदर क्या होता है, अंदर आपके पास होता है मिल्क, स्किम्ड मिल्क भी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क उसको कहते हैं जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा हो, स्किम्ड मिल्क जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा हो। अब इसके अंदर होता है स्किम्ड मिल्क। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, वो जो स्किम्ड मिल्क के अंदर फैट होता है, ड्यू टू इट्स लार्ज, ड्यू टू इट्स हैवीनेस, वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो वॉल्स के गिर्द अराउंड जमा होना शुरू हो जाता है इस तरह, क्योंकि वो फैट कंटेंट है, हैवी है, तो वो इसकी जो वॉल्स होती हैं क्रीम सेपरेटर की, इनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपके पास आ जाता है लाइट मिल्क, या जो ओरिजिनल मिल्क आपको चाहिए जिसमें फैट कंटेंट कम से कम हो, वो आपका यहाँ सेंटर में आपके पास इस तरह से जमा हो जाता है, ठीक है। जो फैट कंटेंट होता है वो साइड पे वॉल्स पे आ जाता है, क्योंकि वो घूमता है बड़ी हाई स्पीड से, ठीक है। सो वो जो आपके पास लाइटर कंटेंट होता है वो सेंटर में जमा हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और हैवियर कंटेंट, ठीक है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो यहाँ पर साइड पे वॉल्स पे जमा हो जाता है, ठीक है। अब देखें, मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब ये दूध या दही, जो भी आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको फैट कंटेंट को कंट्रोल करना होता है। तो ये जितने भी आपके पास ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, या जो जितनी भी डेयरी, ये दूध या आइसक्रीम जो भी ये बनाती हैं, वो क्या यूज करती हैं, ये क्रीम सेपरेटर को यूज करती हैं। अ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर, कि वो स्पिनर होता है, घूमता है हाई स्पीड से। It acts on the same principle of centrifuge machines. Centrifuge machines ऐसी machines को कहते हैं जिसमें हम centrifugal force का concept अप्लाई करते हैं, phenomenon अप्लाई करते हैं, जो centrifugal force के principle पर बेस करती हैं, उनको कहते हैं centrifuge machines. The bowl spins at a very high speed, causing the heavier contents of milk to move outward in the ball, pushing the lighter contents inward towards the spinning axis. स्पिनिंग एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, जिसके गिर्द बॉडी घूमती है, ये होगा इसका एक्सिस यहां पर बीच में, जिसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहा हो। अब वो कह रहा है कि जो हैवियर कंटेंट होता है वो आउटवर्ड मूव करता है, जैसा कि यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखा था कि बॉडी आउटवर्ड मूव करती है, इसी तरह यहां जो हैवियर कंटेंट, फैट कंटेंट होता है, वो आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, सर्कल को दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये है आपके पास सर्कल। अब जो फैट कंटेंट होता है आपके पास, वो इस सर्कल से बाहर मूव करता है, ठीक है, वो इस सर्कल से बाहर मूव करता है और वॉल्स के गिर्द जमा हो जाता है। जबकि जो लाइटर कंटेंट होता है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, वो सेंटर की तरफ जमा हो जाता है सारा। एक्सेस, जो एक्सेस क्योंकि सेंटर में ही होता है, वो जो लाइटर मिल्क होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है आपके पास, ठीक है। सो heavier contents of milk to move outward in the ball, pushing the lighter contents inward towards the spinning axis. Cream or butter fat is lighter than other components in milk. ठीक है, क्रीम जो होता है वो लाइटर होता है अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क में, जो फैट ज्यादा हैवियर होते हैं, क्रीम सबसे ज्यादा उनमें से लाइटर होता है। Therefore, skimmed milk, वही skimmed milk मैंने आपको बताया जिसकी आपके पास फैट जिसमें हो, which is denser than cream. डेंसर मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा है, विच इज डेंसर देन क्रीम, जो कि क्रीम से हैवी है, इज कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल, कि वो जो सेपरेटर है उसमें अंदर जो बाउल है वो उसकी आउटर वॉल पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द लाइटर पार्ट क्रीम, जो लाइटर पार्ट है जिसे हम क्रीम कहते हैं, इज पुश टूवर्ड्स द सेंटर, जो कि कहाँ आ जाता है, सेंटर की तरफ आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं
टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू अ पाइप, और इसके साथ हम एक पाइप लगाया होता है हमने, उसके जरिए हम जो क्रीम होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फैट हमारे पास बाउल में ही रहता है। इस तरह हम क्या करते हैं, ये जो मुख्तलिफ आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क है उसमें से फैट कंटेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने देखा डेली लाइफ में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, जो थ्योरी वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल 3.1 पेज नंबर 83। रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्टेप्स टू परफॉर्म और टू solve a numerical. First step is to read the problem statement carefully. Now first we will read the problem statement 3.1. क्या कहता है, a force of 20 न्यूटन, एक फोर्स है कितने न्यूटन की, 20 न्यूटन की, moves a body with an acceleration of 2 मीटर per second square. What is its mass? ठीक है, पहले ही हमने स्टेप कर लिया कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लिया केयरफुली, बहुत आसान है। उसने हमें 20 न्यूटन की फोर्स दी है। सेकंड स्टेप होता है कि हम गिवन पैरामीटर्स जो हमें स्टेटमेंट में दिए हुए हैं उनको एक जगह लिख लें। सो स्टार्टिंग विद 3.1 न्यूमेरिकल, ठीक है, हमारे पास क्या है, फोर्स 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद होता है कि हमने जो फाइंड करना है उसको हम लिखें टू फाइंड में, ठीक है। टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है, हमने उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन है, हमने उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन पर अब आते हैं। अब आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, वो कहता है F इज इक्वल टू ma। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब सोल्यूशन करें तो उस फॉर्मूला में अगर कोई लॉ है तो उसका पहले जरूर जिक्र करें। तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें, F या नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। हमने क्या निकालना है, मैस निकालना है हमने, तो मैस निकालना है तो एक्सेलरेशन उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो m इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास a, ठीक है। अब आगे देखें, सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। F की क्या वैल्यू है, 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 2, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 10। मैस का यूनिट क्या होता है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, ये मैंने आपको बताया था, m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम्स। ऐसा यूनिट मैस का क्या होता है, हमने पढ़ा भी है, कितना होता है, 10 किलोग्राम्स, ठीक हो गया। सो ये आपके पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर जो आपको चाहिए था। सो ये आपके पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बहुत आसान इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। सेकंड के जिस तरह हमने देखे थे थोड़े से लेंथी थे और थोड़े से मुश्किल थे। मुश्किल इस सेंस में थे क्योंकि वो समझने वाले ज़्यादा थे। ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत आसान एक एक स्टेप में होने वाले न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट 3.2 की तरफ मूव करते हैं। 3.2 में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। बॉडी का वेट क्या है, W से रिप्रेजेंट करते हैं 147 न्यूटन। और न्यूटन क्यों आ रहा है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है। व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा, टेक द वैल्यू ऑफ G एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। G की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने हमसे क्या मांगा है, टू फाइंड में मैस। पहले में भी मैस मांगा था, इसमें भी मैस मांगा है। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमने मैस और वेट के डिफरेंस जब स्टडी किया था तो उसमें वेट का फॉर्मूला डिस्कस किया था। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg,
ठीक है। और जी क्या होती है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी क्या वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरूरी नहीं है हर दफा वो आपको पेपर में भी बताए कि जी की वैल्यू ये है, हो सकता है वो आपको ना बताए, तो आपको ये जी की वैल्यू अब याद होनी चाहिए, इतने न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। सो W इज इक्वल टू एम जी, एम किसके इक्वल हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय जी के, किसके इक्वल हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय जी के। सो वैल्यूज पुट करें, W की क्या वैल्यू है आपके पास 147 और G है 10, ठीक है। सो 147 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 14.7 किलोग्राम्स, ठीक है। आपका कैलकुलेटर भी मौजूद होनी चाहिए जब आप न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.7 किलोग्राम्स। ये भी बड़ा आसान था, सिर्फ वेट का फॉर्मूला आपके पास लगना था। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 3.3 न्यूमेरिकल में क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मैस है 10 किलोग्राम, ठीक है। वो कह रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए होगी कि हम उस बॉडी को क्या करें, प्रिवेंट करा लें, बचा लें फॉलिंग से, ठीक है। अगर तो किसी भी बॉडी को फॉल करने से बचाना है हमने, ठीक है, नीचे गिरने से बचाना है, तो हमें उसके ऊपर अप्लाई फोर्स अप्लाई कर, जैसा कि मेरे पास ये मार्कर है, इस वक्त ये मार्कर क्यों बैलेंस है, ये मार्कर इसलिए बैलेंस है क्योंकि इसका जो वेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसका जो वेट है मेरे पास, या इसका जो मैस की बात करते हैं, मैस है 2 किलोग्राम या वेट है 2 न्यूटन, ठीक है। वेट है इसका 2 न्यूटन जो कि इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अब ये बैलेंस इसलिए है, मैंने आपको बताया था, हमने बहुत एग्जांपल्स डिस्कस की कि बॉडी तब बैलेंस होती है जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। अब एक फोर्स उस पर लग रही है, इसका वेट फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, और एक फोर्स वो लग रही है जिस अप्लाइड फोर्स या रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, जो जिससे मैंने इसको होल्ड किया है, और वो भी 2 न्यूटन ही है, लेकिन एक 2 न्यूटन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि उसका वेट है, और एक 2 न्यूटन है अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि क्या है आपके पास, जो कि है आपके पास उसका क्या, जो अप्लाई फोर्स ऊपर से मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसे प्रिवेंट करवाया है नीचे गिरने से। अगर तो मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिर गया, इसका मतलब इस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं, अपवर्ड नीचे सारी फोर्स आ गई, जिसकी वजह से अर्थ ने इसको इसके वेट की वजह से नीचे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को नीचे गिरने से बचाने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग करने के लिए, हमें उसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। यही वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। तो हम निकालेंगे इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का जितना वेट आएगा उतनी ही फोर्स हमें लगानी पड़ेगी इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए, ठीक है। सो मैस दिया हुआ 10 किलोग्राम, जी अब उसने जैसे यहां नहीं दी, पिछले में दी हुई थी, जी पता है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड फोर्स, ठीक है, सॉल्यूशन टू प्रिवेंट the body from falling, we have to apply, या आपने लिखना है साथ, we have to apply the force, we have to apply the force which is equal to the weight of the body, which is equal to the weight of the बॉडी, ठीक है। हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उसका क्या होगा, वेट होगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं F या W इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो W इज इक्वल टू मैस कितना है जी 10, और G की वैल्यू कितनी है 10, सो W क्या आ जाएगा 100
न्यूटन या जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी होगी 100 न्यूटन हो जाएगी आपका, ठीक है। जिस तरह आंसर में भी आपके पास आ रहा है 100 न्यूटन। सो ये आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया कि हमें 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी ऊपर, फोर्स लगानी पड़ेगी उसके ऊपर कि हम उसको नीचे गिरने से बचा लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम 3.4 न्यूमेरिकल, बहुत इजी है 3.4 न्यूमेरिकल, बिल्कुल 3.1 न्यूमेरिकल की तरह है। यहाँ पर आपके पास बल्कि यहाँ आप वहाँ हमने मैस निकालना था, यहाँ हमने निकालनी है एक्सेलरेशन। आपको एक बॉडी है उसका उस पर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। सिंपल, F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला लगना है, आपने निकालनी है एक्सेलरेशन, उसी तरह मास जाकर वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो जब आपके पास डिवाइड हो जाएगा मास वहाँ जाकर, तो 100 फोर्स है और मास है 50, 100 डिवाइड बाय 50 आंसर विल बी 2। सो ये मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, बड़ा आसान है, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना। मैं अब मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.3 तक हमने कर लिया, 3.4 आपने खुद करना है। अब मैं मूव कर रहा हूँ 3.5 की तरफ। 3.5 न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है उसका वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। वेट है बॉडी का कितना है आपके पास 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने निकालना है वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपवर्ड मूव करे, ठीक है। अब अपवर्ड आपको पता है बॉडी मूव करती है, जो कि हमने टेंशन के केसेस डिस्कस किए थे। उस केस में बॉडी, वो जो स्ट्रिंग पर अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई होती है ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, वो होती है टेंशन फोर्स, ठीक है। हमने बेसिकली वो फोर्स निकालनी है जिसकी वजह से बॉडी अपवर्ड मूव करे, या नेट फोर्स निकालनी, ठीक है। अब सबसे पहले बॉडी का वेट उसने दे दिया, ठीक है। हमें फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। क्या फॉर्मूला होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन हमें यहां मास नहीं दिया गया। सो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अगर मैं लिखता हूं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे बॉडी का मास। किस तरह निकालेंगे, W इज इक्वल टू mg से। किससे निकालेंगे, W इज इक्वल टू mg से। W है हमारे पास 20 न्यूटन, m हमने निकालना है, g आपको पता है कितना होता है 10, तो m हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 किलोग्राम्स, यानी कि उस बॉडी का मास कितना है 2 किलोग्राम्स। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो सपोज करते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है। उस हम सपोज करेंगे वो बॉडी एक ब्लॉक है, आपको समझाने के लिए। ब्लॉक का मास हमने निकाल लिया 2 किलोग्राम, ब्लॉक का जो वेट है वो है 20 न्यूटन। ब्लॉक का वेट कितना है 20 न्यूटन, या जो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है अर्थ जो सेंटर से लगा रही है वो है 20 न्यूटन। हमने उसको मूव करवाना है अपवर्ड। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़े, अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स, कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि उसको अपवर्ड मूव करवाएं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब फोर्स प्रोड्यूस करेंगे अपवर्ड फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी उसमें प्रोड्यूस होगा। तो अभी ये बॉडी फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम है, इसको अब अपवर्ड मूव करवाना है। इसका मतलब वो जो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स, ज्यादा फोर्स लगानी है कि हम उसे ऊपर मूव करवा लें, ठीक है। सो वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो फोर्स क्या है हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें वो फोर्स किसके इक्वल होगी। वो फोर्स बेसिकली इक्वल होगी आपके पास, वो फोर्स आपके पास इक्वल होगी, वो नेट फोर्स होगी। वो कौन सी फोर्स होगी, बेसिकली वो नेट फोर्स होगी। वो नेट फोर्स इक्वल होगी एक तो ma जो कि फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी ऊपर ले जाने के लिए, प्लस उसका वेट mg,
प्लस क्या करना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसका वेट भी है ना 20 न्यूटन जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। एक तो ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, वो कह रहा है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे ऊपर लगाने की, तो वो जो फोर्स निकलेगी जो कि उसे ऊपर मूव करवाने के लिए लगेगी, एक तो वो होगी ma जो कि उसके मैस की वजह से होगी, और कितनी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसने हमें बताई है, और एक उसका जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो, एक उसका सम होगा ma का और एक जो उसका वेट है mg का। ठीक है, सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले मैस कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितनी है 2, इसी तरह यहां मैस 2 और यहां g क्या है 10, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 10 20, सो 20 प्लस 4 आंसर विल बी 24 न्यूटन। ये आपके पास आ गई फोर्स। ठीक है, जिसमें हमने एक तो अप्लाई फोर्स और ऊपर साथ में उसका वेट जो कि एक्ट कर। इसको एक और तरह भी कर सकते हैं, कैसे, ये आंसर आ गया आपको 24 न्यूटन, इससे एक और तरह बता रहा हूं, F इज इक्वल टू ma प्लस mg, ये थी ना इक्वेशन, यहां से m कॉमन आ सकता है जैसे कि हमने डेरिवेशंस में लेते आए हैं। m जब कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा a प्लस g, यही बच जाएगा ना, m डिवाइड हो जाएगा। सो m कितना है हमारे पास, m है 2, एक्सेलरेशन है 2 और g है 10, तो 2 प्लस 10 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर विल बी 24 न्यूटन। सो यहां दोनों केसेस में आप कॉमन लेकर कर लें या वैसे ही कर लें, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 24 न्यूटन। सो ये आपके पास क्या है, नेट फोर्स जो हमें ऊपर बॉडी को मूव करवाने के लिए लगानी चाहिए। ठीक है, सो ये आपके यहां पर टोटल 10 न्यूमेरिकल्स है जिनमें से 5 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को इसकी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे तो आपके पास नोट्स भी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message और through an image। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।